Ladies and gentlemen, welcome to ifactioner.com's Learn Classroom Hindi and Urdu for students through English video tutorial series. In this video tutorial, we will learn to speak more than 300 phrases in Hindi and Urdu through English. We can use those phrases in the classroom environment. Let's start. Good morning, sir, madam will be translated as Shubh Prabhat or Subha Bakhair. And sir or madam. Shubh Prabhat is usually used in Hindi and Subha Bakhair is used in Urdu. Shubh Prabhat, Subha Bakhair, sir or madam. Good afternoon, sir or madam is usually a good afternoon. Sir or madam. Good afternoon, sir or madam. Sir, please don't take a test today. Sir, कृपया करके. कृपया और मेहरबानी. कृपया करके is usually used in Hindi and मेहरबानी करके is usually used in Urdu. Sir, कृपया मेहरबानी करके आज टेस्ट ना लें. सर, कृपया करके मेहरबानी करके आज टेस्ट ना लें. मैडम, we don't want to study today. मैडम, हम आज पढ़ना नहीं चाहते. मैडम, हम आज पढ़ना नहीं चाहते. In Hindi, usually we say पढ़ना and in Urdu we say पढ़ना. Madam, I have forgotten to bring my book. Madam, मैं अपनी किताब लाना भूल गया और गई हूँ. मैडम, मैं अपनी किताब लाना भूल गया हूँ is for male and मैडम, मैं अपनी किताब लाना भूल गई हूँ is for female. Sir, it's the chemistry period. Sir, ये chemistry का period है. Sir, ये chemistry का period है. Madam, what about chapter 9? Madam, chapter 9 के बारे में क्या? So usually we say madam chapter 9 के बारे में क्या, or we can say madam chapter 9 नहीं पढ़ना, which means madam should we not study chapter 9? But madam what about chapter 9 would be translated as madam chapter 9 के बारे में क्या? Sir, I didn't do it. Sir, मैंने नहीं किया. Sir, मैंने नहीं किया. Sir, I forgot to do it. Sir, मैं करना भूल गया for male and भूल गई for female. Sir, मैं करना भूल गया. Sir, मैं करना भूल गई. Madam, why would you like to talk to my parents? Madam, आप मेरे माता पिता और अम्मी अब्बू से क्यों बात करना चाहती हैं? मैडम, आप मेरे माता पिता और अम्मी अब्बू से क्यों बात करना चाहती हैं?
Mata Pita is used in Hindi and Ami Abbu is for Urdu. Madam, my parents work and they can't come. Madam, मेरे माता पिता अम्मी अब्बू काम करते हैं. काम करते हैं मीन्स वर्क, और वो नहीं आ सकते. मैडम, मेरे माता पिता अम्मी अब्बू काम करते हैं और वो नहीं आ सकते. श्योर सर. बिल्कुल सर. बिल्कुल सर. बिल्कुल सर. श्योर सर. बिल्कुल सर. Sir, may we call it a day? It means, sir, can we finish? So in Hindi and Urdu, we would say, Sir, क्या हम ख़त्म कर सकते हैं? Which means, Sir, can we finish? Sir, क्या हम ख़त्म कर सकते हैं? I apologize. मैं क्षमा और माफ़ी चाहता और चाहती हूँ. मैं क्षमा चाहता हूँ is used for male in Hindi and मैं माफ़ी चाहती हूँ is used for female in Urdu. मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ. What is a pin drop silence? Pin drop खामोशी और सन्नाटा क्या होता है? पिन ड्रॉप खामोशी सन्नाटा क्या होता है? Sir, our car broke down. If a teacher asks you, why are you late? Then you can say, Sir, our car broke down. Sir, हमारी गाड़ी खराब हो गई थी. Sir, हमारी गाड़ी खराब हो गई थी. Madam, I woke up late. Why did you come late? Madam, मैं देर से जागा if I'm a male and देर से जागी if I'm a female. Madam, मैं देर से जागा. Madam, मैं देर से जागी. Sir, I was sick. Why didn't you come yesterday? Sir, मैं बीमार था for male और बीमार थी for female. Sir, मैं बीमार था. Can we take the quiz tomorrow? क्या हम क्विज कल दे सकते हैं? क्या हम क्विज कल दे सकते हैं? Thank you. धन्यवाद. धन्यवाद in Hindi and shukriya is usually used in Urdu. धन्यवाद, शुक्रिया. Okay, sir. ठीक है, sir. ठीक है, sir. Sir, may I stay here? Sir, क्या मैं यहाँ रुक सकता हूँ? रुक सकता हूँ is male version and रुक सकती हूँ is a female version. Sir, क्या मैं यहाँ रुक सकता हूँ? Sir, क्या मैं यहाँ रुक सकती हूँ? Madam, I won't be able to hear you from the last row. Madam, आखिरी लाइन से, आखिरी लाइन इज लास्ट रो. मैं आपको सुन नहीं सकूँगा फॉर मेल एंड सकूँगी फॉर फीमेल. मैडम, आखिरी लाइन से मैं आपको सुन नहीं सकूँगा. Sir, may I sit in the exams? Sir,
क्या मैं एग्ज़ाम्स में बैठ सकता हूँ? और या सर क्या मैं एग्ज़ाम्स दे सकता हूँ? सर क्या मैं एग्ज़ाम्स दे सकता फॉर मेल एंड सकती फॉर फीमेल? सर क्या मैं एग्ज़ाम्स दे सकता हूँ? And we have got the question mark at the end. I will come every day. मैं रोज़ाना और हर दिन आऊँगा. मैं रोज़ाना हर दिन आऊँगा for male, गी for female. मैं हर दिन आऊँगा. Madam, my father said that he would submit it by tomorrow. Why haven't you submitted your fees? Madam, my father said that he would submit it by tomorrow. Madam, मेरे पिता और अब्बू ने कहा है कि वो कल जमा करा देंगे. मैडम मेरे अब्बू पिता ने कहा है कि वो कल जमा करा देंगे. सर इज इट इम्पॉर्टेंट? सर क्या ये अहम है? क्या ये ज़रूरी है? सर क्या ये अहम है? आई हैव अ क्वेश्चन. मेरा एक सवाल है. मेरा एक सवाल है. मेरा एक सवाल है. I would like to ask a question. मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा for male and चाहूँगी for female. मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा. I will work hard. मैं मेहनत करूँगा for male and मैं मेहनत करूँगी for female. Present sir. Now it's time for the roll call, and when our teacher asks if you are present or not, then you can say present sir means हाजिर. Sir और मैं यहाँ हूँ. Yes sir, you can say anything. Sir, John has gone to the toilet. Sir, John टॉयलेट गया हुआ है. Sir, John टॉयलेट गया हुआ है. Is it important? क्या ये अहम है? क्या ये अहम है? I don't have a pen. मेरे पास पेन नहीं है. मेरे पास पेन नहीं है. It's very long. ये बहुत बड़ा है. ये बहुत बड़ा है. Means the chapter is very long. Chapter बहुत बड़ा है. May I get 2 more days? क्या मुझे 2 दिन और मिल सकते हैं? क्या मुझे 2 दिन और मिल सकते हैं? Sorry sir, I forgot to do it. Did you do your homework? क्षमा और माफ़ी. चाहता हूँ और चाहती हूँ for female. चाहती हूँ सर. मैं करना भूल गया. मैं करना भूल गया और मैं करना भूल गई.
क्षमा माफ़ी चाहता हूँ, चाहती हूँ सर, मैं करना भूल गया और मैं करना भूल गई फॉर फीमेल। आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। नथिंग मैडम, कुछ नहीं मिस, और मैडम कुछ नहीं मिस। ही वॉज आस्किंग अ क्वेश्चन, वो एक सवाल पूछ रहा था। वो एक सवाल पूछ रहा था। इट वॉज हर, ये उसने किया है या ये वो थी। Who did it? It was her, ये वो थी। It wasn't me, he was talking. मैं नहीं था for male और थी for female। वो बातें, सॉरी, वो बातें कर रहा था। मैं नहीं था या थी, वो बातें कर रहा था। सॉरी सर, इट वॉन्ट हैपन अगेन। क्षमा माफ़ी चाहता हूँ, चाहती हूँ सर, ये फिर नहीं होगा। क्षमा चाहता हूँ सर, माफ़ी चाहती हूँ सर, ये फिर नहीं होगा। We didn't finish chapter number 4. हमने चैप्टर नंबर 4 ख़त्म नहीं किया था, या हमने चैप्टर नंबर 4 ख़त्म नहीं किया। हमने चैप्टर नंबर 4 ख़त्म नहीं किया। What about page number 19? पेज या सफ़ा नंबर और पन्ना नंबर, यू कैन से पन्ना और सफ़ा। पन्ना इज़ यूज्ड इन हिंदी एंड सफ़ा इज़ यूज्ड इन उर्दू। सफ़ा नंबर 19 के बारे में क्या ख्याल है? क्या ख्याल है? What do you think? और it means what do you think? पढ़ना सफ़ा नंबर 19 के बारे में क्या ख्याल है? I can't. I have a flu. मैं नहीं कर सकता और सकती फॉर फीमेल। मुझे ज़ुकाम है, नज़ला है। नज़ला है। मैं नहीं कर सकता, मुझे नज़ला है। I forgot to bring my glasses. मैं अपनी ऐनक लाना भूल गया फॉर मेल और भूल गई फॉर फीमेल। मैं अपनी ऐनक लाना भूल गया। What will be the syllabus? सिलेबस क्या होगा? सिलेबस क्या होगा? It's too much. ये बहुत ज़्यादा है। ये बहुत ज़्यादा है। ये बहुत ज़्यादा है। I'm sorry. मैं क्षमा माफ़ी चाहता हूँ, चाहती हूँ। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं क्षमा चाहती हूँ। I wasn't talking. मैं बात नहीं कर रहा था और कर रही थी फॉर फीमेल। मैं बात नहीं कर रहा था, मैं बात नहीं कर रही थी। Someone from behind was making the noises. कोई पीछे से आवाज़ें निकाल रहा था। कोई पीछे से आवाज़ें निकाल रहा और रही थी।
रही थी इज फॉर फीमेल। कोई पीछे से आवाज़ें निकाल रहा था फॉर मेल एंड कोई पीछे से आवाज़ें निकाल रही थी फॉर फीमेल। आई वॉज आस्किंग अ क्वेश्चन, मैं सवाल पूछ रहा था फॉर मेल एंड रही थी फॉर फीमेल। मैं सवाल पूछ रहा था, मैं सवाल पूछ रही थी। I wasn't peeking, मैं झांक और देख नहीं रहा था। I was not peeking at others' papers, मैं दूसरों का पेपर नहीं देख रहा था। रहा था for male and रही थी for female। मैं झांक नहीं रहा था, मैं देख नहीं रही थी। I'm paying 100% attention, मैं 100% attention दे रहा हूँ और दे रही हूँ for female। मैं 100% attention दे रहा हूँ। I am attentive, मैं होशियार हूँ। मैं होशियार हूँ। From now on, I will come to the class regularly. अब से मैं क्लास में रेगुलर आऊँगा फॉर मेल, आऊँगी फॉर फीमेल। अब से मैं क्लास में रेगुलर आऊँगा। I will try my best to come to the class regularly. मैं पूरी कोशिश करूँगा, और यू कैन से मैं क्लास में रेगुलर आने की पूरी कोशिश करूँगा फॉर मेल एंड गी फॉर फीमेल। मैं क्लास में रेगुलर आने की पूरी कोशिश करूँगा। He is absent, वो नहीं आया और वो गैर हाजिर है। वो नहीं आया, वो गैर हाजिर है। I thought that today was a sports day. मुझे लगा या मैंने सोचा, यू कैन से मैंने सोचा, इट्स बेटर मुझे लगा कि आज स्पोर्ट्स का दिन था। मुझे लगा कि आज स्पोर्ट्स का दिन था। I was reading from it last night and then I forget to put it in the bag. Then I forgot to put it in the bag means why didn't you bring your book? And your answer is मैं रात को पढ़ रहा था फॉर मेल और रही थी फॉर फीमेल, और फिर मैं उसे बैग में डालना भूल गया और भूल गई। मैं रात को पढ़ रहा था, रही थी, और फिर मैं उसे बैग में डालना भूल गई। I have few questions. मेरे कुछ सवाल हैं। I think dash means dash. मेरे ख्याल से डैश का मतलब डैश होता है। मेरे ख्याल से डैश का मतलब डैश होता है। सर डैश मीन्स, सर डैश का मतलब, सर डैश का मतलब थैंक यू
धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद, शुक्रिया। I apologize. It will not happen again. मैं मैं क्षमा माफ़ी चाहता हूँ, ये फिर नहीं होगा। मैं क्षमा चाहता हूँ फॉर मेल, मैं क्षमा चाहती हूँ फॉर फीमेल, ये फिर नहीं होगा। I was paying attention. मैं ध्यान दे रहा था फॉर मेल एंड दे रही थी फॉर फीमेल, मैं ध्यान दे रहा था। Can we start after 5 minutes? क्या हम 5 मिनट बाद शुरू कर सकते हैं? क्या हम 5 मिनट बाद शुरू कर सकते हैं? I was explaining him the meaning of dash dash dash. मैं उसे dash 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 का मतलब समझा रहा था फॉर मेल और समझा रही थी फॉर फीमेल। मैं उसे डैश 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 का मतलब समझा रहा था, मैं उसे डैश 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 का मतलब समझा रही थी। I was telling her the page number. मैं उसे पेज नंबर बता रहा था फॉर मेल एंड बता रही थी फॉर फीमेल, मैं उसे पेज नंबर बता रहा था। I was asking about dash dash dash. मैं dash 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 के बारे में पूछ रहा था और फॉर फीमेल रही थी, मैं डैश के बारे में पूछ रहा था। नो मैडम, नहीं मिस, नहीं मिस। I was just telling the truth. मैं सिर्फ सच बोल रहा था फॉर मेल, रही थी फॉर फीमेल, मैं सिर्फ सच बोल रहा था। I will not do it again. मैं ये दोबारा नहीं करूँगा, मैं ये दोबारा नहीं करूँगा फॉर मेल एंड करूँगी फॉर फीमेल, मैं ये दोबारा नहीं करूँगा, मैं ये दोबारा नहीं करूँगी। I didn't get the last part. मुझे आखिरी हिस्सा समझ नहीं आया, मुझे आखिरी हिस्सा समझ नहीं आया। I have noted it down. मैंने इसे लिख लिया है, मैंने इसे लिख लिया है। I got it. मुझे समझ आ गई, मुझे समझ आ गई, मुझे समझ आ गई। I have understood it. मैं इसको समझ चुका हूँ फॉर मेल और चुकी हूँ फॉर फीमेल, मैं इसको समझ चुका हूँ। प्लीज़ डू इट वंस। कृपया मेहरबानी करके एक दफ़ा कर दें, एक दफ़ा कर दें। कृपया मेहरबानी करके एक दफ़ा कर दें। Thank you. We didn't understand all the concepts previously. धन्यवाद, शुक्रिया, हमें आखिरी बार सारे कॉन्सेप्ट समझ नहीं आए थे, सारे कॉन्सेप्ट्स समझ नहीं
आए थे। धन्यवाद, शुक्रिया, हमें आखिरी बार सारे कॉन्सेप्ट समझ नहीं आए थे। कैन यू प्लीज़ रिपीट इट? क्या आप इसको रिपीट कर सकते हैं? If you are asking from a male teacher and if you are asking from a female teacher, then we can say क्या आप इसको रिपीट कर सकती हैं? क्या आप इसको रिपीट कर सकते हैं? Should we just listen to you or write it all down? क्या हम सिर्फ आपको सुने या फिर इसे लिख लें? क्या हम सिर्फ आपको सुने या इसे लिख लें? What are you going to do next? आप आगे क्या करने जा आप आगे क्या करेंगे? करेंगे for male and करेंगी for female. आप आगे क्या करेंगे? Do we get the homework? क्या हमें घर का काम मिलेगा? क्या हमें घर का काम मिलेगा? Can we do it in groups? क्या हम ये ग्रुप्स में कर सकते हैं? क्या हम ये ग्रुप्स में कर सकते हैं? Yes, we have made our group. हाँ, हम अपना ग्रुप बना चुके हैं। हाँ, हम अपना ग्रुप बना चुके हैं। Our group is complete. हमारा ग्रुप मुकम्मल है या हमारा ग्रुप या पूरा। हमारा ग्रुप पूरा हो चुका है। हमारा ग्रुप पूरा हो चुका है। Do we need to do it in our or do we need to do it on our own? क्या ये हमने खुद से करना है? क्या ये हमने खुद से करना है? And खुद is like this. क्या हमने खुद से करना है? I didn't understand the last topic. मुझे आखिरी टॉपिक समझ नहीं आया। मुझे आखिरी टॉपिक समझ नहीं आया। I asked what do we mean by dash dash dash. मैंने पूछा कि डैश 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 से हमारा मतलब क्या है? हमारा मतलब क्या है? मैंने पूछा कि डैश 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 से हमारा मतलब क्या है? I meant to say that डैश 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 मेरे कहने का मतलब था कि डैश 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 मेरे कहने का मतलब था कि डैश 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 आई एम ट्राइंग माई बेस्ट मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा और रही फॉर फीमेल हूँ। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ। If I speak slowly, then I can't remember what to say. अगर मैं आहिस्ता बोलूँगा या गी तो मुझे अगर मैं आहिस्ता बोलूँगा तो मुझे याद नहीं रहे अगर मैं आहिस्ता बोलूँ
सिंपल यू कैन सिंपली से, अगर मैं आहिस्ता बोलूँ तो मुझे याद नहीं रहता कि क्या कहना है, कि क्या कहना है। अगर मैं आहिस्ता बोलूँ तो मुझे याद नहीं रहता कि क्या कहना है। इट्स द बेस्ट आई कैन डू। ये मैं बस यही कर सकता और सकती हूँ। मैं बस यही कर सकता हूँ, मैं बस यही कर सकती हूँ। आई कैन ट्राई, मैं कोशिश कर सकता हूँ और कर सकती हूँ। फॉर फीमेल, मैं कोशिश कर सकता हूँ। आई हैव टॉन्सिल्स, मेरा गला खराब है। मेरा गला खराब है। मेरा गला खराब है। मे आई आंसर दिस क्वेश्चन, क्या मैं इस सवाल का जवाब दे सकता हूँ? क्या मैं इस सवाल का जवाब दे सकता हूँ? फॉर मेल, एंड इफ आई एम अ फीमेल देन आई विल से, क्या मैं इस सवाल का जवाब दे सकती हूँ? आई नो द आंसर, मुझे जवाब पता है। मुझे जवाब पता है। मुझे जवाब पता है। आई डोंट नो द आंसर, मुझे जवाब नहीं आता और मुझे जवाब नहीं पता है। मुझे जवाब नहीं आता। आई वॉज वंडरिंग इफ वी कैन फिनिश अर्ली, मैं सोच रहा और रही फॉर फीमेल, मैं सोच रहा था फॉर मेल एंड मैं सोच रही थी फॉर फीमेल कि क्या हम जल्दी ख़त्म कर सकते हैं। मैं सोच रहा था कि क्या हम जल्दी ख़त्म कर सकते हैं। इट मीन्स डैट, इसका मतलब है कि, इसका मतलब है कि आई एम फाइन थैंक यू, मैं ठीक हूँ धन्यवाद। शुक्रिया, मैं ठीक हूँ धन्यवाद शुक्रिया। वी आर फाइन थैंक यू, हम ठीक हैं धन्यवाद शुक्रिया। हम ठीक हैं धन्यवाद शुक्रिया। He was talking to me, वो मुझसे बातें कर रहा था। वो मुझसे बातें कर रहा था। Sir, may I sit in the front row? Sir, क्या मैं पहली लाइन में बैठ सकता और सकती हूँ? सर, क्या मैं पहली लाइन में बैठ सकता हूँ? फॉर मेल, सर, क्या मैं पहली लाइन में बैठ सकती हूँ? फॉर फीमेल। आर यू गोइंग टू टेक अनदर क्विज? क्या आप एक और क्विज लेंगे? फॉर मेल एंड लेंगी फॉर अ फीमेल टीचर। क्या आप एक और क्विज लेंगे? इट्स टाइम टू गो होम, अब घर जाने का समय और वक्त हो गया है। अब घर जाने का समय वक्त हो गया है। आई कैंट फाइंड माई इंग्लिश बुक, मैं अपनी अंग्रेजी की किताब
नहीं ढूंढ सक रहा या मुझे अपनी अंग्रेज़ी की किताब नहीं मिल रही। मुझे अपनी अंग्रेज़ी की किताब नहीं मिल रही। मुझे अपनी अंग्रेज़ी की किताब नहीं मिल रही। आई वॉज सिक, मैं बीमार था फॉर मेल एंड मैं बीमार थी फॉर फीमेल। मैं बीमार था। आई वॉज इन द प्रिंसिपल्स ऑफिस, मैं प्रिंसिपल के दफ्तर में था। मैं प्रिंसिपल के दफ्तर में था फॉर मेल एंड थी फॉर फीमेल। मैं प्रिंसिपल के दफ्तर में था। इट विल नेवर हैपन अगेन, ये दोबारा, और यू कैन से ये फिर कभी नहीं होगा। ये फिर कभी नहीं होगा। I promise that it will never happen again. मैं वादा करता और करती फॉर फीमेल हूँ कि ये दोबारा कभी नहीं होगा। मैं वादा करता हूँ कि ये दोबारा कभी नहीं होगा। Can you please give us 5 extra minutes? क्या आप हमें 5 मिनट और दे सकते हैं फॉर मेल एंड और दे सकती हैं फॉर फीमेल। क्या आप हमें 5 मिनट और दे सकते हैं? मैडम 5 मिनट्स आर स्टिल लेफ्ट। मैडम अभी 5 मिनट रहते हैं। मैडम अभी 5 मिनट रहते हैं। प्लीज़ गिव मी एन एक्स्ट्रा शीट। कृपया मेहरबानी करके मुझे एक एक्स्ट्रा शीट दे दें। मुझे एक अजाफी शीट और एक्स्ट्रा शीट दे दें। कृपया मेहरबानी करके मुझे एक एक्स्ट्रा शीट दे दें। इट्स वेरी लॉन्ग, ये बहुत बड़ा है। ये बहुत बड़ा है। प्लीज़ गिव अस सम एक्स्ट्रा टाइम। कृपया मेहरबानी करके हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दें। हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा, और यू कैन से अजाफी समा वक्त, अजाफी समा और वक्त दे दें। कृपया मेहरबानी करके हमें थोड़ा सा अजाफी समा वक्त दे दें। Do we need to write our names and roll numbers? क्या हमें अपने नाम और रोल नंबर्स लिखने की ज़रूरत है? लिखने की ज़रूरत है। क्या हमें अपने नाम और रोल नंबर्स लिखने की ज़रूरत है? कैन वी फिनिश इट टुमारो? क्या हम ये कल ख़त्म कर सकते हैं? क्या हम ये कल ख़त्म कर सकते हैं? थैंक यू मिस। धन्यवाद, शुक्रिया मिस। धन्यवाद, शुक्रिया मिस। इज़ इट ओवर? क्या ये ख़त्म हो चुका है? क्या ये ख़त्म हो चुका है? क्या ये ख़त्म हो चुका है? इट्स ऑलमोस्ट 12 o'clock। तकरीबन 12 बज चुके हैं। तकरीबन 12 बज चुके हैं। Sir, 2 minutes are left. Can we call it a day? Sir, 2 मिनट बचे हैं। क्या हम ख़त्म कर सकते हैं? क्या हम इसे ख़त्म कर सकते हैं? सर, 2 मिनट बचे हैं। क्या हम इसे ख़त्म कर सकते हैं? कैन वी फिनिश नाउ?
क्या अब हम ख़त्म कर सकते हैं? क्या हम अब ख़त्म कर सकते हैं? क्या हम अब ख़त्म कर सकते हैं? क्या हम अब ख़त्म कर सकते हैं? May I leave? क्या मैं जा सकता हूँ? और क्या मैं जा सकती हूँ? For female. क्या मैं जा सकता हूँ? May I go to the toilet? क्या मैं टॉयलेट जा सकता और सकती for female हूँ? क्या मैं टॉयलेट जा सकता हूँ? May I go to the washroom? क्या मैं वॉशरूम जा सकता for male, सकती for female हूँ? क्या मैं वॉशरूम जा सकता हूँ? May I go to the principal's office? क्या मैं प्रिंसिपल के दफ्तर जा सकती हूँ? क्या मैं प्रिंसिपल के दफ्तर जा सकता हूँ? May I go to the sports hall? क्या मैं खेलने वाले हॉल में जा सकता for male, सकती for female हूँ? क्या मैं खेलने वाले हॉल में जा सकता हूँ? May I go to play cricket? क्या मैं क्रिकेट खेलने जा सकती for female हूँ? क्या मैं क्रिकेट खेलने जा सकता हूँ? Miss, it's too much. Miss, ये बहुत ज़्यादा है. Miss, ये बहुत ज़्यादा है. I understand. मैं समझता और समझती. मैं समझ गया. It's better. मैं समझ गया for male and मैं समझ गई for female. Sir, can we not do it tomorrow? Sir, क्या हम ये कल नहीं कर सकते? हम ये कल नहीं कर सकते? Sir, क्या हम ये कल नहीं कर सकते? May I rehearse for the speech? क्या मैं तकरीर की रिहर्सल कर सकता और सकती for female हूँ? क्या मैं तकरीर की रिहर्सल कर सकता हूँ? Here it is. ये रहा. Which book? कौन सी किताब? May I read today? क्या मैं आज पढ़ सकता for male and सकती for female हूँ? क्या मैं आज पढ़ सकता हूँ? क्या मैं आज पढ़ सकती हूँ? Sorry sir, I couldn't sleep well last night. क्षमा माफ़ी चाहती हूँ सर. मैं कल रात सही नहीं सो सका for male and सो सकी for female. क्षमा चाहता हूँ सर. मैं कल रात सही नहीं सो सका. I got it. मुझे समझ आ गई. I got it. मुझे समझ आ गई. मुझे समझ आ गई. Sir, please ask the chemistry teacher not to take the test. Sir, कृपया मेहरबानी करके केमिस्ट्री के टीचर से कहें कि आज टेस्ट ना लें. सर, कृपया मेहरबानी करके केमिस्ट्री के टीचर से कहें कि आज टेस्ट ना लें. I would like to apply for 2 weeks holidays. मैं 2 हफ्ते की
छुट्टी के लिए अप्लाई करना चाहूँगा फॉर मेल एंड गिव फॉर फीमेल। मैं 2 हफ्ते की छुट्टी के लिए अप्लाई करना चाहूँगा। कैन यू हेल्प मी इन दिस मैटर? क्या इस मामले में आप मेरी मदद कर सकते हैं? क्या इस मामले में आप मेरी मदद कर सकते और सकती फॉर फीमेल हैं? क्या इस मामले में आप मेरी मदद कर सकते हैं? प्लीज़ गिव मी 3 एक्स्ट्रा नंबर्स। कृपया मेहरबानी करके मुझे 3 एक्स्ट्रा नंबर्स दे दें। कृपया मेहरबानी करके मुझे 3 एक्स्ट्रा नंबर्स दे दें। You didn't check answer number 5 in my paper. आपने मेरे पेपर में जवाब नंबर 5 चेक नहीं किया। आपने मेरे पेपर में जवाब नंबर 5 चेक नहीं किया। प्लीज़ गिव मी एक्स्ट्रा टाइम। कृपया मेहरबानी करके मुझे एक्स्ट्रा और अज़ाफ़ी वक्त दे दें। कृपया मेहरबानी करके मुझे अज़ाफ़ी वक्त दे दें। द पेपर इज़ वेरी लॉन्ग। पेपर बहुत लंबा है। पेपर बहुत लंबा है। I forgot to bring my notebook. मैं अपनी कॉपी लाना भूल गया फॉर मेल एंड भूल गई फॉर फीमेल। मैं अपनी कॉपी लाना भूल गया। कैन वी स्टार्ट नाउ? क्या हम अब शुरू कर सकते हैं? क्या हम अब शुरू कर सकते हैं? प्लीज़ 2 more minutes. कृपया मेहरबानी करके 2 और मिनट दे दें। कृपया मेहरबानी करके 2 और मिनट्स दे दें। Here is my paper. ये रहा मेरा पेपर। ये रहा मेरा पेपर। Sir, Jane is not giving her paper. Sir, Jane अपना पेपर नहीं दे रही है। Sir, Jane अपना पेपर नहीं दे रही है। Should I start distributing the papers? क्या मैं पेपर्स बांटना शुरू कर दूं? क्या मैं पेपर्स बांटना शुरू कर दूं? I need an extra sheet. मुझे एक एक्स्ट्रा शीट चाहिए। मुझे एक एक्स्ट्रा शीट चाहिए। I have gotten all the notes. मेरे पास सारे नोट्स हैं। मेरे पास सारे नोट्स हैं। I have brought the new book. मैं नई किताब लेकर आया और आई फॉर फीमेल हूँ। मैं नई किताब लेकर आया हूँ। I checked it on Wikipedia. मैंने इसे विकिपीडिया पर चेक किया था। मैंने इसे विकिपीडिया पर चेक किया था। I consulted different websites and wrote it down in my own words. मैंने मुख्तलिफ वेबसाइट्स से देखा था और फिर अपने शब्दों और लफ्ज़ों में लिखा। मैंने मुख्तलिफ वेबसाइट्स से देखा था और फिर अपने शब्दों लफ्ज़ों में लिखा।
Can you please tell me the addresses of some specific websites? क्या आप मुझे कुछ ख़ास वेबसाइट्स का बता सकते हैं? वेबसाइट्स के पते बता सकते हैं? क्या आप मुझे मुख्तलिफ वेबसाइट्स, कुछ ख़ास वेबसाइट्स के पते बता सकते हैं? फॉर मेल सकती हैं, फॉर फीमेल। आई हैव ऑलरेडी डन इट। मैं ये पहले ही कर चुका हूँ। मैं ये पहले ही कर चुका हूँ। मैं ये पहले ही कर चुका हूँ। आई हैव ऑलरेडी अटेम्प्टेड इट। मैं ये पहले ही कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, फॉर फीमेल। कैन वी सबमिट देम नेक्स्ट वीक? क्या हम अगले हफ्ते जमा करा सकते हैं? क्या हम अगले हफ्ते जमा करा सकते हैं? आई हैव लिसन्ड टू यू लाउड एंड क्लियर। और यू कैन से आई कैन listen to you loud and clear. मैं आपको अच्छी तरह सुन सकता और सकती हूँ। मैं आपको अच्छी तरह सुन सकता हूँ। मैं आपको अच्छी तरह सुन सकती हूँ। I was paying attention but I couldn't get it. मैं ध्यान दे रहा था और रही थी, फॉर फीमेल, लेकिन मुझे समझ नहीं आई। मैं ध्यान दे रहा था लेकिन मुझे समझ नहीं आई। I partially understood it. मुझे थोड़ी बहुत समझ आई और मुझे जुज़वी तौर पे इसकी समझ आई। पार्ट से मीन्स इन पार्ट्स। partially means in parts. I try to do it again. मैं इसे दोबारा करने की कोशिश करूँगा, फॉर मेल, एंड करूँगी, फॉर फीमेल। मैं इसे दोबारा करने की कोशिश करूँगा। My answer is, मेरा जवाब है डैश डैश डैश। मेरा जवाब है I was saying that, मैं कह रहा था, कह रही थी, फॉर फीमेल, के डैश डैश डैश। मैं कह रहा था कि I apologize, it won't happen again. मैं माफ़ी चाहता हूँ या चाहती हूँ, ये फिर नहीं होगा। मैं क्षमा चाहता हूँ, ये फिर नहीं होगा। I'm sorry, I will try to do it perfectly next time. मैं माफ़ी चाहता हूँ, चाहती हूँ, मैं इसे अगली दफ़ा परफेक्ट करने की कोशिश करूँगा, फॉर मेल, एंड करूँगी, फॉर फीमेल। मैं माफ़ी चाहता हूँ, चाहती हूँ, मैं इसे अगली दफ़ा परफेक्ट करने की कोशिश करूँगा। Yes, I understand. हाँ, मुझे समझ आ गई। हाँ, मुझे समझ आ गई। It will not happen again. ये फिर से नहीं होगा। ये फिर से नहीं होगा, ये दोबारा नहीं होगा। I will be extra careful in the future. मैं मुस्तकबिल में ज़्यादा ध्यान दूंगा। और मैं मुस्तकबिल में ज़्यादा
केयरफुल हूँगा, मैं मुस्तकबिल में ज़्यादा केयरफुल हूँगा। आई विल डू माई बेस्ट, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। और गी फॉर फीमेल, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। आई वॉज वंडरिंग इफ़ वी कैन रिवाइज चैप्टर 1, मैं सोच रहा था और रही थी कि क्या हम चैप्टर 1 को दोहरा सकते हैं। मैं सोच रहा था कि हम चैप्टर 1 को दोहरा सकते हैं। एंड वी हैव गॉट the question mark at the end. As I was saying, dash dash dash, जैसा कि मैं कह रहा था और कह रही थी कि जैसा कि मैं कह रहा था, कह रही थी। I had little time to attempt the last question, so I will just change it to I had, so it's easier to understand it. मेरे पास आखिरी सवाल करने के लिए थोड़ा समय और वक्त था। मेरे पास आखिरी सवाल करने के लिए थोड़ा समय वक्त था। I prefer typing over writing. मैं लिखने पर टाइप करने को तरजीह देता और देती फॉर फीमेल हूँ। मैं लिखने पर टाइप करने को तरजीह देता हूँ। श्योर, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आई एम वेटिंग, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। इंतज़ार कर रहा फॉर मेल एंड रही फॉर फीमेल। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। मे वी फिनिश द लेसन, क्या हम लेसन ख़त्म कर सकते हैं? क्या हम लेसन सबक ख़त्म कर सकते हैं? ओके, आई एम सिटिंग हियर। ठीक है, मैं यहाँ बैठ रहा और रही फॉर फीमेल हूँ। ठीक है, मैं यहाँ बैठ रहा हूँ। इज़ इट नेसेसरी, क्या ये ज़रूरी है? क्या ये ज़रूरी है? देयर इज़ नो फैन ओवर देयर, वहाँ पर पंखा नहीं है। वहाँ पर पंखा नहीं है। He was teasing me, वो मुझे तंग कर रहा था। वो मुझे तंग कर रहा था। वो मुझे तंग कर रहा था। She was bothering me first, वो मुझे पहले तंग कर रही थी। वो मुझे पहले तंग कर रही थी। He borrowed my pen yesterday and now he's not returning it. उसने मेरा पेन कल लिया था और अब वो वापस नहीं कर रहा। उसने मेरा पेन कल लिया था और अब वो वापस नहीं कर रहा। इट्स अ गुड न्यूज़, ये अच्छी खबर है। ये अच्छी खबर है। कैन वी नॉट स्किप इट, क्या हम
इसे छोड़ नहीं सकते। क्या हम इसे स्किप नहीं कर सकते? क्या हम इसे नहीं छोड़ सकते? टुमारो इज संडे। कल संडे है। कल संडे है। Please give us a couple of minutes more, or you can say please give us a couple of more minutes. So it's better. कृपया मेहरबानी करके हमें कुछ और मिनट दे दें। कृपया मेहरबानी करके हमें कुछ और मिनट दे दें। प्लीज़ डोंट गिव अस होमवर्क। कृपया मेहरबानी करके हमें घर का काम ना दें। हमें घर का काम ना दें। कृपया मेहरबानी करके हमें घर का काम ना दें। होल चैप्टर इज़ टू मच। पूरा चैप्टर बहुत ज़्यादा है। पूरा चैप्टर बहुत ज़्यादा है। थैंक यू फॉर नॉट गिविंग अस एनी होमवर्क। आप यू कैन से हमें घर का काम ना देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। हमें घर का काम ना देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। मे आई कम इन? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? फॉर मेल एंड आ सकती हूँ फॉर फीमेल। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? कैन आई कम इन? इन अमेरिकन इंग्लिश वी से कैन आई कम इन। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आ सकती हूँ। मे आई डू इट? क्या मैं ये कर सकता और सकती फॉर फीमेल हूँ? क्या मैं ये कर सकता हूँ? Here is my assignment. ये रही मेरी असाइनमेंट। ये रहा मेरा घर का काम। थैंक यू एंड यू आर द बेस्ट टीचर। बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। और आप सबसे अच्छे फॉर मेल एंड अच्छी फॉर फीमेल टीचर हैं। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया और आप सबसे अच्छे टीचर हैं। वी आर द बेस्ट बिकॉज वी हैव गॉट द बेस्ट टीचर। हम सबसे अच्छे इसलिए हैं क्योंकि हमें सबसे अच्छा और अच्छी फॉर फीमेल टीचर मिला फॉर मेल और मिली फॉर फीमेल है। हम सबसे अच्छे इसलिए हैं कि हमें सबसे अच्छा टीचर मिला है। इज़ इट नॉट योर फर्स्ट क्लास? क्या ये आपकी पहली क्लास नहीं है? क्या ये आपकी पहली क्लास नहीं है? आई एम ट्राइंग टू फिनिश इट एज सून एज पॉसिबल। मैं इसे जल्द अज जल्द ख़त्म करने की कोशिश कर रहा और रही फॉर फीमेल हूँ। मैं इसे जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड माई वर्क। मैं पहले ही अपना काम ख़त्म कर चुका फॉर मेल चुकी फॉर फीमेल हूँ। मैं पहले ही अपना काम ख़त्म कर चुका हूँ। थैंक यू। यू ऑल्सो एन्जॉय योर हॉलीडेज़। धन्यवाद, शुक्रिया। आप भी अपनी
छुट्टियों को एंजॉय करें, आप भी अपनी छुट्टियों का मज़ा लें। धन्यवाद, शुक्रिया, आप भी अपनी छुट्टियों का मज़ा लें, आप भी अपनी छुट्टियों को एंजॉय करें। गुड बाय, अलविदा, अलविदा, सी यू नेक्स्ट वीक। आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी, आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। सी यू ऑन मंडे, आपसे मंडे को मुलाकात होगी, आपसे मंडे को मिलेंगे। सी यू आफ्टर द समर वेकेशंस, आपसे गर्मियों की छुट्टियों के बाद मिलेंगे, आपसे गर्मियों की छुट्टियों के बाद मिलेंगे। आई विल डू इट इन द फर्स्ट मंथ, मैं इससे पहले महीने में कर लूँगा, फॉर मेल एंड गी फॉर फीमेल, मैं इसे पहले महीने में कर लूँगा। सी यू, फिर मिलेंगे, फिर आपको देखूँगा, फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे। सर, ही इज़ नॉट स्टैंडिंग इन द क्यू, सर वो लाइन में खड़ा नहीं हो रहा, सर वो लाइन में खड़ा नहीं हो रहा। ही कट द लाइन, उसने लाइन तोड़ी, उसने लाइन काटी, उसने लाइन तोड़ी। इज़ देयर एनी स्पेशल प्रोग्राम, क्या कोई ख़ास प्रोग्राम है, क्या कोई ख़ास प्रोग्राम है। आई वॉज टॉकिंग अबाउट डैश, मैं डैश के बारे में बात कर रहा था, फॉर मेल, एंड कर रही थी, फॉर फीमेल, मैं डैश के बारे में बात कर रहा था। एक्सक्यूज्ड, जी माफ़ किया, जी माफ़ किया। एक्सक्यूज़ मी, मुझे माफ़ करना, मुझे क्षमा करना, मुझे माफ़ करना। मे आई गो टू द बायोलॉजी क्लास, क्या मैं बायो की क्लास में जा सकता, फॉर मेल, सकती फॉर फीमेल हूँ, क्या मैं बायो की क्लास में जा सकता हूँ। मे आई बोरो अ पेन, मे आई बोरो अ पेन, क्या मैं पेन मांग सकता हूँ, सकता फॉर मेल एंड सकती फॉर फीमेल हूँ, क्या मैं पेन मांग सकता हूँ। शी नीड्स एन एक्स्ट्रा शीट, उसे एक्स्ट्रा शीट चाहिए, उसे एक्स्ट्रा शीट चाहिए। आई डोंट नो हाउ टू डू इट, मुझे नहीं पता कि इसे कैसे करना है, मुझे नहीं पता कि इसे कैसे करना है। थैंक यू फॉर टेलिंग मी, मुझे बताने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, मुझे बताने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। इज़ देयर आ स्पेशल ओकेजन, क्या कोई ख़ास ओकेजन है, क्या कोई ख़ास मामला है, क्या कोई ख़ास मामला है। आई एम ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा और रही फॉर फीमेल हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स इन दिस स्कूल, इस स्कूल में मेरे कोई दोस्त नहीं हैं,
स्कूल में मेरे कोई दोस्त नहीं हैं। I haven't finished answering the previous question. मैंने अभी आखिरी सवाल का जवाब देना ख़त्म नहीं किया। मैंने अभी आखिरी सवाल का जवाब देना ख़त्म नहीं किया। What did you ask? आपने क्या पूछा? What did you ask? आपने क्या पूछा? What did you ask? आपने क्या पूछा? I didn't understand your question. मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया। मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया। May I ask her a question? क्या मैं उससे एक सवाल पूछ सकता हूँ? पूछ सकता for male and सकती for female हूँ। क्या मैं उससे एक सवाल पूछ सकता हूँ? Can someone tell me the meaning of dash? क्या मुझे कोई डैश का मतलब बता सकता है? क्या मुझे कोई डैश का मतलब बता सकता है? Please tell me the meaning of dash. कृपया मेहरबानी करके मुझे डैश का मतलब बता दें। कृपया मेहरबानी करके मुझे डैश का मतलब बता दें। I know, but there are many problems at home. मुझे पता है, लेकिन घर पर काफ़ी मसले हैं। मुझे पता है, लेकिन घर पर काफ़ी मसले हैं। I will try to do it once again. I will try to do it once again. मैं इसे दोबारा करने की कोशिश करूँगा। मैं इसे दोबारा करने की कोशिश करूँगी। फीमेल वर्जन। We are facing a lot of problems at home. हमें घर पर काफ़ी मसले हैं। हमें घर पर काफ़ी मसले हैं। Please take the open book test. कृपया मेहरबानी करके खुली किताब से टेस्ट ले लें। प्लीज़ कृपया मेहरबानी करके खुली किताब से टेस्ट ले लें। आर वी गोइंग आउट? क्या हम बाहर जा रहे हैं? क्या हम बाहर जा रहे हैं? क्या हम बाहर जा रहे हैं? Did you check our assignments? क्या आपने हमारी असाइनमेंटें चेक की? क्या आपने हमारी असाइनमेंट्स चेक की? We were on page number 21. हम पन्ने और सफ़े नंबर 21 पर थे। हम सफ़े पन्ने नंबर 21 पर थे। We covered chapter 12. हमने चैप्टर नंबर 12 पढ़ा था। हमने चैप्टर नंबर 12 पढ़ा था। We were talking about dash. हम डैश के बारे में बात कर रहे थे। फॉर्मेल थी कर रहे थे। Yeah, it's better. हम डैश के बारे में बात कर रहे थे। What did we do in the last class? हमने आखिरी क्लास में क्या किया था? हमने आखिरी क्लास में क्या किया था? Can you please cover ABC topic? क्या आप ABC टॉपिक को
टॉपिक के बारे में बता सकते हैं? बता सकते फॉर मेल टीचर एंड सकती फॉर फीमेल टीचर, सकती हैं। क्या आप एबीसी टॉपिक के बारे में बता सकते हैं? वी हैवंट कवर्ड द एबीसी टॉपिक। हमने एबीसी टॉपिक नहीं पढ़ा। हमने एबीसी टॉपिक नहीं पढ़ा। प्लीज़ रिपीट इट। कृपया मेहरबानी करके इसे फिर से बता दें। कृपया मेहरबानी करके इसे फिर से बता दें। वेयर इज़ डायग्राम 2.1? डायाग्राम 2.1 किधर है? डायग्राम 2.1 किधर है? It tells us that, ये हमें बताती है कि डैश डैश डैश, ये हमें बताती है कि I want to ask a question, मैं एक सवाल पूछना चाहता फॉर मेल, चाहती फॉर फीमेल हूँ। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। नो आई वॉज गेटिंग लेट, नहीं मुझे देर हो रही थी। नहीं मुझे देर हो रही थी। आई वॉज इन द प्रिंसिपल्स ऑफिस ड्यूरिंग द रिसेस। आधी छुट्टी में मैं प्रिंसिपल के दफ्तर में था, और थी फॉर फीमेल। आधी छुट्टी में मैं प्रिंसिपल के दफ्तर में था। वी डिस्कस्ड इट यस्टरडे, हमने इस बारे में कल पढ़ा था। हमने इस बारे में कल पढ़ा था। हमने इस बारे में कल पढ़ा था। I can't as I have no pen, मैं नहीं कर सकता और सकती क्योंकि मेरे पास पेन नहीं है। क्योंकि मेरे पास पेन नहीं है। मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास पेन नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। आई एम लिसनिंग टू यू, मैं आपकी बात सुन रहा और रही फॉर फीमेल हूँ। मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। यस आई एम लिसनिंग टू यू, जी मैं आपकी बात सुन रहा फॉर मेल, रही फॉर फीमेल हूँ। जी मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। ही इज़ डिस्टर्बिंग मी, वो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, तंग कर रहा है। वो मुझे तंग कर रहा है। आई वॉज आस्किंग, मैं पूछ रहा था, मैं पूछ रहा फॉर मेल, रहा था फॉर मेल एंड रही थी फॉर फीमेल, डैश डैश डैश। मैं पूछ रहा था। माई स्पोकन इंग्लिश इज़ वीक, मेरी अंग्रेज़ी बोल चाल कमज़ोर है। मेरी अंग्रेज़ी बोलचाल कमज़ोर है। आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ फॉर फीमेल, मैं ये कर सकता हूँ। आई नो, मुझे पता है, मुझे पता है। वॉट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? हाउ मच टाइम डू वी गेट टू कंप्लीट द MCQs? MCQs करने के लिए हमें कितना वक्त मिला है? MCQs करने के लिए हमें कितना वक्त मिला है?
Should I use the highlighter? क्या मुझे हाइलाइटर यूज़ करना चाहिए? क्या मुझे हाइलाइटर यूज़ करना चाहिए? Can we use the highlighter instead? क्या हम हाइलाइटर इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या हम हाइलाइटर इस्तेमाल कर सकते हैं? Yes, he said it. हाँ, उसने ये कहा था. हाँ, उसने ये कहा था. I agree with you, but I didn't get the whole concept. मैं आपसे मुत्तफिक हूँ, लेकिन मुझे पूरा कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया. मैं आपसे मुत्तफिक हूँ, लेकिन मुझे पूरा कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया. Yes, we do. हाँ, हम करते हैं. हाँ, हम करते हैं. How much money? कितने पैसे? कितने पैसे? Should I write down the names? क्या मैं नाम लिख लूँ? क्या मुझे नाम लिख लेने चाहिए? क्या मैं नाम लिख लूँ? She knows the answer. उसे जवाब पता है. उसे जवाब पता है. Thank you for the clarification. Clarification क्लियर करने के लिए धन्यवाद. शुक्रिया. क्लियर करने के लिए धन्यवाद. शुक्रिया. What is the correct answer? सही जवाब क्या है? सही जवाब क्या है? An example would make it easier. मिसाल इसको आसान बना देगी. मिसाल इसको आसान बना देगी. Can you please write on the whiteboard? क्या आप वाइट बोर्ड पर लिख सकते फॉर मेल एंड सकती फॉर फीमेल हैं? क्या आप वाइट बोर्ड पर लिख सकते हैं? I will be finished in a minute. मैं 1 मिनट में ख़त्म कर लूँगा फॉर मेल एंड कर लूँगी फॉर फीमेल. मैं 1 मिनट में ख़त्म कर लूँगा. I don't know the answer. मुझे जवाब नहीं पता. मुझे जवाब नहीं पता. मुझे जवाब नहीं पता. ओके, ठीक है. ठीक है. Thank you for the encouragement. Encouragement. Thank you for the encouragement. बकअप करने के लिए, एनकरेज करने के लिए. धन्यवाद. शुक्रिया. एनकरेज करने के लिए शुक्रिया. I need a glass of water. मुझे पानी का गिलास चाहिए. मुझे पानी का गिलास चाहिए. Can I do it tomorrow? क्या मैं ये कल कर सकता हूँ? और सकती हूँ फॉर फीमेल. क्या मैं ये कल कर सकता हूँ? I realized that I was wrong. मुझे पता है कि मैं गलत था फॉर मेल एंड थी फॉर फीमेल. मुझे पता है कि मैं गलत था. It was my fault. ये मेरी गलती थी. ये मेरी गलती थी. I don't have a sharpener. मेरे पास शार्प पेनर नहीं
है, मेरे पास शार्पनर नहीं है। वेयर इज़ द इंक बॉटल? इंक की बोतल कहाँ है? इंक की बोतल कहाँ है? आई वॉज आस्किंग, मैं पूछ रहा था, रही थी, मैं पूछ रहा था। द क्वेश्चन इज रेलिवेंट। सवाल रेलेवेंट है। सवाल रेलेवेंट है। यस, आई बोरोड हिज पेन एंड देन रिटर्नड इट। हाँ, मैंने इसका पेन लिया था और फिर वापस कर दिया। हाँ, मैंने इसका पेन लिया था और फिर वापस कर दिया। आई एम लिसनिंग, मैं सुन रहा और रही फॉर फीमेल हूँ, मैं सुन रहा हूँ। कैन आई आंसर इट वर्बली? क्या मैं इसका जवाब ज़ुबानी दे सकता हूँ और सकती हूँ फॉर फीमेल? क्या मैं इसका जवाब ज़ुबानी दे सकता हूँ? वेयर इज़ द डस्टर? डस्टर कहाँ है? डस्टर कहाँ है? वी कवर्ड पेज नंबर 2 yesterday. हमने कल पढ़ना और सफ़ा नंबर 2 पढ़ा था। हमने कल पढ़ना नंबर सफ़ा नंबर 2 पढ़ा था। यस, यू वर सेइंग, हाँ, आप कह रहे फॉर मेल रही, आप कह रहे थे फॉर मेल एंड कह रही थी फॉर फीमेल डैश डैश डैश। हाँ, आप कह रहे थे। इट मीन्स दैट वी विल हैव टू कवर द होल बुक। इसका मतलब है कि हमें पूरी किताब पढ़ना पड़ेगी। इसका मतलब है कि हमें पूरी किताब पढ़ना पड़ेगी। आई एम लुकिंग एट यू, मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ फॉर मेल, देख रही हूँ फॉर फीमेल। मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ, मैं आपकी तरफ देख रही हूँ। आई हैव फॉरगॉटन टू ब्रिंग माई ग्लासेस। सॉरी, मैं अपनी ऐनक लाना भूल गया फॉर मेल, गई फॉर फीमेल हूँ, मैं अपनी ऐनक लाना भूल गया हूँ। आई हैव ऑलरेडी रेड इट, मैं पहले ही पढ़ चुका हूँ, मैं पहले ही पढ़ चुका फॉर मेल, चुकी फॉर फीमेल हूँ, मैं पहले ही पढ़ चुका हूँ। आई एम ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा हूँ, कर रही हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। इज़ इट नॉट एन ओपन बुक टेस्ट? क्या ये खुली किताब का टेस्ट नहीं है? क्या ये खुली किताब का टेस्ट नहीं है? कैन वी वर्क इन अ ग्रुप? क्या हम ग्रुप में काम कर सकते हैं? क्या हम ग्रुप में काम कर सकते हैं? कैन वी वर्क इन पेयर्स? क्या हम जोड़ियों में काम कर सकते हैं? क्या हम जोड़ियों में काम कर सकते हैं? नो वन वॉज पिकिंग हिम अप, कोई भी उसे पिक नहीं कर रहा था, कोई भी उसे पिक नहीं कर रहा था। So ladies and gentlemen, thank you very much for joining me. If you have any questions, then you can ask me in the comments section below. And if you have any suggestions, then you can also use the comments section. Please don't forget to like this video and please share this video with your friends and family members on different social media websites. I will see you next time. Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.